Should I start now? Hello students, welcome to the third class of Riemann integral. In the last class I have given you some question, even one question I have given you, example number 2. मैंने आपको दिया था f of x is x cube on a closed interval a b और 0 से b. तो मैंने कहा था इसका अपर सम, लोअर सम और इंटीग्रल निकालिए आप सब लोग, अपर इंटीग्रल, लोअर इंटीग्रल सब निकालिए. तो मुझे पता नहीं आपने किया कि नहीं किया क्वेश्चन को, इसको आपको करना चाहिए था क्वेश्चन. तो कई बच्चों को हो सकता है पार्टीशन लेने में दिक्कत आई हो. लेट मी सॉल्व इट फॉर यू, राइट. मैं आपके लिए सॉल्व करता हूँ इसको. सबसे पहले हमारे को पार्टीशन लेना होता था इसमें, दैट इज टी नॉट विच इज ए जीरो है, देन टी वन फर्स्ट पार्टीशन, राइट. तो 1b बाय n, t2 which is 2b by n, and similarly you have to take tk minus 1 which is k minus 1 b by n, and then tk kb by n, and finally tn which is nb by n, and which is b only, right. So this is how you have to take the partitions, right. Then you have to take the kth subinterval. This is the kth subinterval, tk minus 1 and tk. So here in this case the subinterval is k minus 1 b by n comma kb by n. This is the kth subinterval. Now you have to find the length of the kth subinterval, del tk. आपको find करना है, which is tk minus tk comma, which is tk comma minus tk minus 1, and then you have to find the supremum mk f of tk comma, which is the same subinterval, and small infimum, so f of whatever it is, जो भी सब इंटरवल के अंदर फंक्शन है उसी को निकालना पड़ेगा आपको बेटा यहाँ पर, in the same सब इंटरवल which is actually f of tk and which is f of tk minus 1, which is at this point f of kb by n, and which is at f of k minus 1 b by n. तो ये आप इन्फिमम सुप्रीमम यहाँ से निकाल सकते हैं इस फंक्शन का, and then you can substitute all these information in the upper integral and the lower integral. So your upper integral formula is u f p when p is the partition of this, which is summation where k vary from 1 to n, sum of all this, area, length into the supremum. Yes, into the supremum आएगा upper के लिए, और lower के लिए आपके पास आ जाएगा बच्चों summation where k vary from 1 to n into the infimum, right. So this is how you can find the upper sum and the लोअर सम. जैसे मैंने क्वेश्चन कराया था एक्स स्क्वायर वाला, वैसे ही ये क्वेश्चन एग्जैक्टली उसी तरीके से करना है बेटा, एग्जैक्टली उसी तरीके से करना है क्वेश्चन. हेलो बेटा, हेलो अमन, अमन अरोड़ा, हेलो. तो मैं आज कुछ नया क्वेश्चन कराता हूं और आगे बढ़ता हूं इस चैप्टर के ऊपर, ठीक है. तो दोनों क्वेश्चन है, दोनों इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई एक क्वेश्चन जरूर आता है, या एफ ऑफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर या एफ ऑफ एक्स इजकल टू एक्स क्यूब, अगर बात है दिल्ली यूनिवर्सिटी की. तो चलिए एक नया क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, आपको मजा आएगा इस क्वेश्चन में. एग्जाम्पल 3, आपका एफ ऑफ एक्स जो है बेटा मैंने ऐसे ले लिया है, 1 if x belongs to rationals and -1 if x belongs to irrational on a closed interval ab. yes, ये फंक्शन है. अब हम इस फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो हमें अपर सम लोअर सम निकालना है पहले तो, और फिर अगर अपर इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल के बराबर आ गया तो वो डाबॉक्स इंटीग्रेबल मतलब रीमान इंटीग्रल भी है. तो देखिए, सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले इस क्वेश्चन को देखें प्लीज आप. वी हैव टू टेक द पार्टीशंस, राइट. वी नो टी नॉट टी वन ऐसे करके हम पार्टीशन लेते हैं हमेशा. So this is a standard notation we should follow from the book, which is Tn, finite partition, right?
Then we have a subinterval, the kth subinterval, which is tk minus 1 comma tk, right? Then we have the length of the kth subinterval, which is del tk. Length of the kth, which is tk minus 1. Then we can find the supremum of the kth subinterval, which is the supremum of the function in the subinterval. So here in this case, the supremum is 1. है ना बेटा? Small mk, which is the infimum of the same function in the subinterval, which is -1 here. ये आ गया हमारे पास. क्या ये इंफॉर्मेशन सबको समझ में आ गई? बाकी सब स्टैंडर्ड है एज इट इज. सिर्फ सुप्रीमम 1 हो जाएगा और इन्फीमम क्या हो जाएगा बेटा? -1. अब ध्यान से देखें हाउ आई एम गोइंग टू राइट द अपर सम एंड द लोअर सम हेयर. तो अपर सम को लिखते हैं बेटा UFP इज द अपर सम, विच इज समेशन del tk into the supremum mk, where k vary from 1 to n. Okay, what is the supremum? Supremum क्या होगा बेटा? हमारा 1 होगा, right? Yes, supremum is 1 into 1. What is left with us? This is the length of whole interval. This is the length of whole interval. तो पूरे इंटरवल की लेंथ हमेशा b माइनस ए होगी कि नहीं होगी बेटा? क्योंकि हमारा क्लोज इंटरवल ए भी था. तो दिस इज योर अपर सम. So length of the whole interval is b minus a. Then we have a lower sum beta. Again, summation length into the infimum, which is small mk, where k vary from 1 to n. So which is you can write, which is -1 बच्चों. I can keep -1 here. Again, the length of the whole interval is b minus a. So can we write this as a minus b? Yes. So here we find the upper sum and the lower sum, guys. Hello, Rahul Sharma. AB, BA, Rahul Sharma, AB. What do you mean by the word AB? AB और BA से क्या मतलब है बेटा आपका यहाँ पर? अच्छा, वो लिख बता रहे हो आप. अच्छा, देखिए नेक्स्ट. फिर व्हाट इज अपर इंटीग्रल? एक्चुअली हमें अपर सम को मिनिमाइज करना होता है. इट इज द इन्फिमम ऑफ द अपर सम. इट इज द इन्फिमम ऑफ अपर सम व्हेन p इज द पार्टीशन ऑफ अ क्लोज इंटरवल AB. And what is lower integral? It is the supremum, right? First of all, we will find this. चलिए जी इसकी बात करते हैं. तो हमारा अपर सम क्या है इसमें? b माइनस ए है ना बेटा? तो इन्फिमम भी b माइनस ए ही रह जाएगा. और लोअर इंटीग्रल क्या है आपका बताओ? यस बेटा, it is the supremum of the lower sum when p is the partition of a closed interval AB. So supremum of a minus b is again मेरे बेटा a minus b. So we can clearly see from here that the lower integral is not same as the upper integral. So this is not a Riemann integral, right? This is not a Riemann integral. जय हिंद गुरुजी. ओहो, ये तो मेरा ही कोई स्टूडेंट लगता है. सार्थक सचदेवा जी, जय हिंद भाई. तो देखिए ये है आपका ये वाला क्वेश्चन जो हमने किया. बड़ा इजी क्वेश्चन था. एग्जाम में ये क्वेश्चन ना देखे दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर्स का बड़ा अट्रैक्शन रहता है इस क्वेश्चन पे. इसी तरह का क्वेश्चन है वो भी. ये क्वेश्चन आप सब बच्चे बनाएंगे अपने घर पे. ये क्वेश्चन जनरली वो पूछते हैं एग्जाम में. सी
when x belongs to rational 0, when x belongs to irrational on a closed interval AB। तो करके देखिएगा ये वाला क्वेश्चन। सर अनअकैडमी पर आपके कोर्सेज कब शुरू होंगे सर सार्थक? मैंने अनअकैडमी छोड़ दिया है विवेक सर और मैंने। वी आर नॉट द पार्ट ऑफ अनअकैडमी नाउ। मैंने तो अक्टूबर में ही छोड़ दिया था। सार्थक कह रहा है स्टूडेंट नहीं भक्त और फैन बोल रहे हैं। थैंक यू सार्थक, थैंक यू वेरी मच। मैंने तो अक्टूबर में ही छोड़ दिया था, विवेक सर ने जनवरी तक कंटिन्यू किया था उसको। और हम अपने अल्फा प्लस पे ही पढ़ा रहे हैं क्योंकि ऑफलाइन खुल गया है। तो काफ़ी ठीक है, थोड़ा बहुत जो भी काम है अल्फा प्लस में करने में ज़्यादा मज़ा है काम करने में। वैसे आप अपने फ्रेंड्स को बता सकते हैं कि जिस फीस के अंदर हम पढ़ाते हैं, अनअकैडमी पढ़ाता है, उतनी ही फीस में अल्फा प्लस में पढ़ा रहे हैं हम लोग। उतनी ही फीस में अल्फा प्लस में पढ़ा रहे हैं। सर प्लीज़ दोबारा ज्वाइन करिएगा क्या सर? आपके लिए तो सब्सक्रिप्शन लिया था सर सार्थक। इरफान अहमद, इरफान डोंट वरी बेटा, आप लोग के सब्सक्रिप्शन है, आई एग्री विद यू। पर हम विवेक सर और मैं, हम लोग अपने अल्फा प्लस को ही कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा। वी आर रियली एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। पर कोशिश करेंगे कि आपको कंपनसेट कर पाएँ। कुछ ना कुछ हम यूट्यूब पे टॉपिक्स अच्छे अच्छे डालते रहेंगे, आपको हमारा नया कंटेंट देखने को मिलता रहेगा। हाँ जी प्लीज़, ये हमने रीमान इंटीग्रल है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे जिनका कॉलेज के एग्जाम्स हैं उनके लिए लॉन्च किया है ये। तो रीमान इंटीग्रल टॉपिक चल रहा है ये। तो आप मनीष सर को मैथमेटिक्स पढ़ाते हुए देख रहे हैं। मनीष सर को मैथमेटिक्स पढ़ाते हुए देख रहे हैं, जबकि मनीष सर को आपने सिर्फ स्टैटिस्टिक्स पढ़ाते हुए देखा है। आई नो सार्थक, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। चलिए बच्चों, तो हमने ये बात की लास्ट क्लास में, जो बातें की थोड़ा सा रिव्यू दे रहा हूं आपको, और वो बहुत जरूरी है हमारे लिए। सर अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी क्लासेस will be taken in full course of IIT JAM? Rahul, if you want to prepare for IIT JAM statistics, mathematical statistics, regular course of 350 hours. After that we need to have a practice course, because regular course के साथ आप प्रैक्टिस नहीं करा सकते। पूरे कोर्स की प्रैक्टिस कराने के लिए, क्योंकि जब आप टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कराते हैं ना राहुल, तो बच्चा कर लेता है। जब सारे क्वेश्चंस मिक्स होके आते हैं तब फंस जाता है। तो रेगुलर कोर्स के बाद हर बच्चे को प्रैक्टिस कोर्स जरूर ज्वाइन करना चाहिए। अनअकैडमी पे लास्ट ईयर मैंने रेगुलर कोर्स तो चलाया, लेकिन प्रैक्टिस कोर्स नहीं चलाया। तो प्रैक्टिस कोर्स की बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस क्या है? जब क्वेश्चंस मिक्स होके आते हैं टॉपिक्स, वो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है उसकी। तो 350 घंटे का कोर्स है, लगभग 200-200 प्लस आवर्स का रेगुलर कोर्स है, और स्टैटिस्टिक्स का 70% वेटेज है, और मैथमेटिक्स का ऑलमोस्ट 150 आवर्स का है। उसके बाद आपको प्रैक्टिस कोर्स भी करना होगा। अगर आपको शॉर्ट गारंटी चाहिए कि हाँ सर सिलेक्शन होना ही चाहिए, तब की बात हो रही है ये। चलिए जी, देखिए बेटा, अब हमारे को लेमा बोलता है, कहते हैं टू शो कि अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड, अपर सम एंड लोअर सम आर बाउंडेड। हमें लेमा क्या कह रहा है बेटा कि अपर सम UFP एंड LFP, अपर सम एंड लोअर सम आर बाउंडेड, ये लेमा है पहला। ओके राहुल, तो देखो ध्यान से, प्लीज बोर्ड पे ध्यान से देखो फोटो को, आपको बड़ा अच्छे समझ में आएगी बात मेरी। मान लो ये वाला मैंने ग्राफ ले लिया बेटा, से दिस इज अ ग्राफ आई हैव टेकन, दिस इज बी क्लोज इंटरवल AB somewhere here, right? And this is be sub interval TK minus 1 and TK. This is be sub interval TK minus 1 TK.
तो अगर मैं इस फंक्शन को देखूं बेटा तो मुझे लग रहा है इस पॉइंट पे सुप्रीमम है हमारा फंक्शन का, विच इज एम के, विच इज द सुप्रीमम, राइट, ऑफ द फंक्शन, राइट, इन द सब इंटरवल। तो सुप्रीमम मतलब एफ ऑफ टी के है वो, राइट। और अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं मेरे बेटा, वी हैव अ इन्फिमम हेयर, स्मॉल एम के, which is yes infimum, which is f of tk minus 1, and I call it as infimum of the function in that subinterval tk minus 1 and tk, right? ये हाँ सुप्रीमम हो गया और ये क्या हो गया बेटा हमारा इन्फिमम, राइट। और हमें बात करनी है इसकी, तो अब हमारा क्वेश्चन क्या था कि अपर सम एंड लोअर सम आर बाउंडेड। तो सबसे पहले अरेंज करते हैं इस पूरे फंक्शन का सुप्रीमम और इन्फिमम अरेंज करते हैं। क्या ये चीज एम के होगा, इसको फिर कैपिटल एम के, विच इज द सुप्रीमम ऑफ द फंक्शन इन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी। यस बच्चों, ये पूरे फंक्शन का सुप्रीमम है। और इसी तरह से क्या ये स्मॉल एम के इन्फिमम हो गया कि नहीं हो गया ऑफ द एंटायर फंक्शन f in the close interval AB? yes। तो बताओ मेरे बच्चों, क्या ये स्मॉल m के और ये है कैपिटल M के, क्या ये और ये है स्मॉल m के, राइट, और ये है कैपिटल M के। कलर को पहचानो, सिर्फ कलर। चलो डैश लगा देते हैं इस पे, आपको ऐसा लगेगा तो डैश लगा देते हैं। फॉर ऑल के, क्या ये ऑर्डर है कि नहीं बताओ पहले सारे बच्चे। यस, यही ऑर्डर है कि स्मॉल एम के इज लेस देन इक्वल टू स्मॉल के एम के डैश, एंड दिस इज द ऑर्डर। यस। अब मैंने क्या किया, पूरे पे समेशन डेल टी के लगा दिया पूरे पे। तो मैंने यहां क्या किया, समेशन डेल टी के, यहां भी क्या किया, समेशन डेल टी के, और यहां भी सारे में ऐसे ही कर दिया बेटा मैंने। समेशन डेल टी के से पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, राइट। तो मैं इसको क्या लोअर सम बोल सकता हूं ऑफ द फंक्शन एफ व्हेन पी इज द पार्टीशन, और इसको अपर सम बोल सकता हूं क्या बेटा। और यहां से स्मॉल एम के बाहर लिया, तो बताओ द लेंथ ऑफ द होल इंटरवल। एम के नहीं लिखेंगे इसको, एम ही लिखेंगे सिर्फ, small m, sorry, this is a mistake. Yes, now it is corrected. Thank you very much students, इसको small m और capital M ही बोलेंगे। ओके, यहां से भी रिमूव कर देता हूं, यहां से भी रिमूव कर दिया। ओके, देखो ध्यान से, यू एफ पी, कैपिटल एम बाहर और समेशन डेल टी के। अब बताओ व्हाट इज द लेंथ ऑफ द होल इंटरवल, विच इज b माइनस ए। so this is the lower sum, this is the upper sum। बड़े दिनों बाद रीमान पढ़ा रहे हैं, मैथ्स पढ़ा रहे हैं, 1 साल से अनअकैडमी पे स्टार्ट से पढ़ाते रह गए, पढ़ाने का मौका नहीं दिया विवेकानंद सर ने मैथ्स। हाँ, तो बताओ क्या अपर सम लोअर सम दोनों बाउंडेड हैं कि नहीं, देख लो, आपके आंखों के सामने है। So this they both are bounded above by this and below by this. So upper sum and lower sum both are bounded. उत्कर्ष कब तक हो जाएगा ये सर? पूरा अप्रैल में खत्म हो जाएगा बेटा, तुम्हारे एग्जाम से पहले खत्म हो जाएगा। अभी चीजें सेट कर रहे हैं धीरे धीरे करके बेटा। तो ये हमने लेमा कर लिया है कि अपर सम एंड लोअर सम आर बाउंडेड, और मैंने वो करेक्शन कर दिया है, इसको के हटा दिया यहां से। हाँ जी, नेक्स्ट प्लीज। तो आपका ये अपर सम लोअर सम चला गया है। अब हम बात कर लेते हैं अपर इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल की। तो अपर सम एंड लोअर सम आर बाउंडेड, वी गॉट टू नो फ्रॉम देयर। अब हम बात कर रहे हैं अपर इंटीग्रल। ये बात तो सबको पता है, अपर इंटीग्रल इज द इनफिमम और द मिनिमम
of upper sum when P is the partition. पार्टीशन पे बहुत डिपेंड करती है सारी चीजें. P is the partition of a closed interval AB, right? This is upper integral. Lower integral LF, which is the supremum of the lower sum when the same language P is the partition of a closed interval AB. अरे क्लियर है बेटा? अब यहां बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुने आप लोग. अब जैसा कि मैं आपको कह रहा हूं कि लोअर इंटीग्रल जो है वो सुप्रीमम है लोअर सम का, तो इसका मतलब ये बात तो जाहिर सी है कि वो बड़ा बराबर होगा सभी लोअर सम से, क्योंकि वो सुप्रीमम है. ये तो बड़ा होगा या बराबर होगा बेटा. अरे करेक्ट है. ओके जी. और बात हो रही है आपकी अपर इंटीग्रल की, तो अपर इंटीग्रल इन्फिमम है, तो वो छोटा बराबर होगा अपर सम से कि नहीं, बताइए प्लीज. यस. अरे बोलो भाई, ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? तो आपका लोअर इंटीग्रल बड़ा बराबर होगा लोअर सम से और अपर इंटीग्रल छोटा बराबर होगा अपर सम से, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन. ध्यान से चेक कर लीजिए बेशक डेफिनेशन आप लोग. अब हम लिखने जा रहे हैं डेफिनेशन ऑफ डाबॉक्स इंटीग्रल. इस बात में कोई शक है तो बात कर सकते हैं, क्योंकि आगे रिलेशंस बढ़ते जाएंगे और आपको समझना बहुत जरूरी है उनको, सभी रिलेशन को. और जो भी हम कर रहे हैं सब बाउंडेड फंक्शंस में कर रहे हैं. तो कहता है एग्जामिनर, लेट f be a bounded function. जो f है वो एक बाउंडेड फंक्शन है ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल ए बी. देन f is said to be Darboux integral. f is said to be Darboux integral on a closed interval AB if and only if lower integral is equal to the upper integral. So this is the definition of Darboux integral, right? ये याद चाहिए, मैंने तो पहले बताया था आपको. जो भी हम बात करेंगे वो तो पक्की कर लीजिए, हमेशा फंक्शन कैसा होना चाहिए, बाउंडेड फंक्शन पे ही बात होगी. इस पूरे चैप्टर के अंदर हम जो भी बात कर रहे हैं बाउंडेड फंक्शन के अंदर ही कर रहे हैं बच्चों, जो भी बात हम लोग कर रहे हैं. आई थिंक टिल हियर एवरीथिंग इज क्लियर गाइज. क्या यहां तक सारी बातें आपकी ठीक हैं कि नहीं, बता दीजिए जरा. तो ये डाबॉक्स इंटीग्रल की डेफिनेशन है. अब हमें आना है एक बहुत इंपॉर्टेंट लेमा से, जिससे कि इनके बीच में जो मैंने येलो वाले दो लिखे हैं ना, ये जो लोग मैंने लिखे हैं, इनके बीच में एक बहुत बढ़िया रिश्ता डेवलप होने वाला है और पार्टीशंस हम बढ़ाने वाले हैं. चलिए बोर्ड पे देखिए. पहले तो क्या मैंने आपको नॉर्म पी के बारे में बताया था, नॉर्म पी which is the maximum length of the partition. जितने भी पार्टीशंस हैं उसकी सबसे मैक्सिमम लेंथ को नॉर्म पी बोलते हैं. यस, मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ पार्टीशन. सो नॉर्म पी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डेल टी के फॉर ऑल के 1 2 डैश डैश n. अब इसके बाद मैंने एक बात आपको रिव्यू चल रहा है जो अगले वाले लेमा में काम आएगा. रिव्यू 1, रिव्यू 2. अब मैंने इसके बाद एक वर्ड बताया होगा आपको, रिफाइनमेंट. रिफाइनमेंट
मैंने कहा था P जो पार्टीशन है वो कंटेन करता है Q में, तो P पार्टीशन Q में कंटेन करेगा, इसका मतलब क्या है? P पार्टीशन इज कंटेन्ड इन Q, इस बात का मतलब क्या है भाई? कि P की सारी टर्म्स Q में होंगी। अगर Q के पास P से एक भी नंबर एक्स्ट्रा है तो सारी टर्म्स वहीं पे होंगी ना भाई। हाँ, तो कहता है मैक्सिमम लेंथ ऑफ Q हमेशा छोटी बराबर होगी मैक्सिमम लेंथ ऑफ P से। ऐसा मैं आपको उदाहरण भी दे सकता हूं, जैसे कि ये P पार्टीशन है, मैंने आपको दिया भी होगा। ऐसे ही ये Q पार्टीशन है, 0, 1/4, 1/2, 4/5, 1। ये लो, क्या P के सारे पॉइंट्स Q में कंटेन करते हैं? यस। व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ P? इज हाफ। देखो 1 और हाफ में से माइनस कर दो, तो यहां पर कोई भी लेंथ हाफ दिख रही है आपको? इसके बीच की लेंथ देख लो आप, इसके बीच की लेंथ, इसकी बीच की लेंथ, तो सारी की सारी जो लेंथ है Q की, क्या वो छोटी बराबर P से हैं कि नहीं बताओ? तो इस बात को बोलते हैं रिफाइनमेंट। तो Q रिफाइंस P, मतलब जितने ज्यादा छोटे पार्टीशंस हो जाएंगे मैक्सिमम लेंथ उतनी छोटी हो जाएगी। सो दिस इज कॉल्ड एज रिफाइनमेंट। अब इन दोनों बातों का इस्तेमाल करके मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट लेमा पे आने जा रहा हूं। वो लेमा क्या है, ध्यान से सब बच्चे बोर्ड पे देख लीजिए। हाँ जी, लेमा 2 है ये। हाँ, सभी का लेस देन हाफ है इरफान अहमद। बराबर भी हो सकता था पर ज्यादा नहीं होगा, बिल्कुल भी बराबर भी हो सकता था बेटा। ठीक है, तो लेट f बी अ बाउंडेड फंक्शन। फिर से वही बात, लेट f बी अ बाउंडेड फंक्शन ऑन अ क्लोज इंटरवल ए बी। f कोई बाउंडेड फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी, एंड इफ p and q be two partitions of close interval a b। कहता है P और Q कोई दो पार्टीशंस हैं क्लोज इंटरवल ए बी, सच दैट, इस तरीके से कि P कंटेन करता है Q में, देन वी हैव टू प्रूव द स्टेटमेंट 1। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम लेंथ ऑफ Q, या यूं कहो मैक्सिमम लेंथ को छोड़ो, आप अपर सम पे आ जाओ सीधा। UFQ is less than equal to UFP। UFQ is less than equal to UFP, और लोअर सम के अंदर LFP is less than equal to LFQ। ये कैसे है, ये प्रूव करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये स्टेटमेंट की मदद से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपके, बहुत सारी थ्योरम्स प्रूव होंगी, अगर ये स्टेटमेंट की नॉलेज आपको है तो। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेमा। कहता है एफ बाउंडेड फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी में, P and Q with the partition such that P is contained in Q। I want to highlight this। तो जो अपर सम है Q का वो छोटा बराबर होगा अपर सम ऑफ P से, और यहां से मैं एक रिलेशन डेवलप करने वाले हैं। तो मैं ये वाला करता हूं, ये वाला आप लोग होमवर्क हो जाएगा आपका, समझ में सारा आएगा, बड़े ध्यान से समझना होगा, लेकिन आपको जल्दीबाजी कोई नहीं चाहिए मुझे। आ जाइए बोर्ड पे, ध्यान से समझिए। आई थिंक आई शुड टेक अ न्यू पेज, क्योंकि ये स्टेटमेंट नीचे की तरफ लिखूंगा आएगा नहीं पूरा। आ जाइए बोर्ड पे ध्यान से। ओके, दिस इज योर क्लोज इंटरवल ए बी, ऐसे ले लिया मैंने, राइट, एंड दिस इज योर फंक्शन
ठीक है बेटा। अब इसके बहुत सारे पार्टीशंस होंगे। दिस इज एफ ऑफ एक्स ऑन अ क्लोज इंटरवल ए बी, कोई भी फंक्शन है बेटा ये। अब मैंने सबसे पहले पी पार्टीशन लिया है। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द पार्टीशन। मुझे पी ऐसा लेना है कि पी क्यू के अंदर कंटेन करेगा बेटा। तो दिस इज विद द पी पार्टीशन where t naught is a, t1 dash dash, tk minus 1, tk dash dash, tn be b. So this is the p partition और मैं इसको ड्रॉ भी कर रहा हूं यहां पर। This is t naught, this is t1, this is t2, ऐसे करते जाएंगे। We have this is tk minus 1, we have this is tk और ऐसे करते जाएंगे। this is tn. Okay, these are the partitions, p partition. Okay. अब मुझे एक पार्टीशन और लेना है so that p is contained in q. So means in q I should take at least one extra term. I should take at least one extra term here. I think I should write in a different color, जो कि मैंने यूज नहीं किया अभी तक। चलिए जी, p की टर्म्स तो ब्लू में ही रखूंगा और इसको देखते हैं फिर। अरे भैया ये तो चार्जर ही गया हमारा, बाप रे बाप। Q, this is T naught is A, this is T1, this is Tk minus 1. This is the extra term I am going to take, C. Now again back to the things, Tk and Tn is equal to B. बताइए जी, अब ये C मैं ट्रेस कर देता हूं इस फोटो के अंदर। So this is B, the partition C. So does Q has one extra term than P? तो क्या साफ साफ दिख रहा है कि P कंटेन करेगा Q में कि नहीं करेगा? बताइए। यस, ऑब्वियसली करेगा। तो मैं कुछ काम करता हूं, पहले ब्लू कलर का सहारा लेता हूं, ये इंटरवल बनाता हूं। ये सब इंटरवल बना दिया मैंने। इस सब इंटरवल के हिसाब से ये जो हुआ हमारे सुप्रीमम और इन्फीमम हो गए। So this is Bmk, which is the supremum of the function when the subinterval is tk minus 1 and tk. Okay, fine guys, बिल्कुल क्लियर है ये बात। And this is B small mk, which is be the infimum of the same function in the same subinterval tk minus 1 and tk. करेक्ट। अब सारा हाईलाइट है ग्रीन कलर पे। तो ग्रीन कलर के अंदर दिस इज बी द वन सब इंटरवल, राइट। सो दिस सब इंटरवल हैज, दिस इज द सुप्रीमम। सो दिस इज mk dash, which is the supremum of the function in the subinterval tk minus 1 comma c. Okay, प्लीज नोटिस दिस, ये c आया यहां पर, tk नहीं आया यहां पर। This is c here, and similarly this is here small mk dash, which is infimum of the same function in the interval tk minus 1 comma c. ज्यादा गड़बड़ हो तो बताना भाई, समझ में आ रहा हो तो ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर यहां तक सबको। नाउ आई एम गोइंग टू चेंज द कलर्स। अब मैं सब इंटरवल बना रहा हूं ये वाला। अब ले रहा हूं इसको दिस इज mk डबल डैश, which is the supremum of the function in the subinterval c comma tk.
मैं साफ साफ तो लिख पा रहा हूं बच्चों, समझ तो आ रहा है ना सारी चीजें। हाँ जी, इस इंटरवल में अगेन आई एम राइटिंग हेयर ऑल्सो, दिस इज स्मॉल एम के डबल डैश which is the infimum of the function in the subinterval tk c comma tk. Okay, I think you can watch everything here. यहां साफ साफ क्या दिख रहा है आपको, मैं कलर से मैच करके दिखाता हूं। पहली चीज, स्मॉल एम के okay is less than equal to, you can clearly see from here, small mk dash may be equal to, because okay, which is less than equal to capital mk double dash, which is less than equal to mk, I think और भी जा रहा होगा, mk डैश भी तो है यार, रुको तो सही है अभी mk डैश, सॉरी, ओके, पर्पल वाला भी तो है ना अभी, mk डैश विच इज लेस देन इक्वल टू, मतलब मैं सुप्रीम सुप्रीम लिख देता हूँ एक साथ और इन्फिमम एक साथ लिख देता हूँ, क्यों मिक्स कर रहा हूँ मैं फालतू में आपके लिए। एक्चुअली यहाँ थोड़ा सा मुश्किल होता है ऑफलाइन में चीज़ें समझाना, तो आई एम मैचिंग ओनली सुप्रीमम्स, सिर्फ सुप्रीमम्स को कंपैरिजन में दिखा रहा हूँ मैं सिर्फ, और कुछ भी नहीं, राइट। पहले एम सुप्रीमम एम के डैश इज लेस देन इक्वल टू एम के डबल डैश इज लेस देन इक्वल टू एम के। अब मैच करिए, अब थोड़ा सा आसान लगेगा आपको समझना। सुप्रीमम्स को कंपेयर किया पहले मैंने सिर्फ, देखो इस ग्रीन वाले सब इंटरवल का सुप्रीमम स्मॉल एम के डैश, पर्पल वाले सब इंटरवल का एम के डबल डैश, और पूरा बड़े वाला ब्लू वाले इंटरवल का एम के। क्या ये ऑर्डर आ रहा है कि नहीं आ रहा? बस यू शुड नोट दिस ऑर्डर ओनली, ये ऑर्डर आपका समझ में आना चाहिए। और अगर ऐसे ही मैं अलग से कंपेयर करूं इन्फिमम्स को, तो वो भी कंपेयर कर सकता हूं मैं नाम से, दैट स्मॉल एम के कलर के साथ कलर के साथ स्मॉल एम के इज लेस देन इक्वल टू, राइट, स्मॉल एम के डैश which is less than equal to, yes, this purple wala mk double dash. So this is for the infimums and this is for the supremums. ये ऑर्डर आ रहा है आपका, अभी क्वेश्चन करके बताऊंगा तो मजा आएगा आपको। क्या यहां तक की बात एकदम क्लियर है, पिक्चर में समझ में आ रहा है सब कुछ कि नहीं आ रहा है? मैंने डिफरेंट डिफरेंट कलर्स यूज किए हैं इसके लिए। ओके इरफान, आ रहा है समझ में? हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, ज्यादा गड़बड़ तो नहीं होगी? कलर्स देख पा रहे हो ना अलग अलग साफ साफ? ब्लू बड़े वाला इंटरवल है, फिर छोटे वाले सब इंटरवल से ग्रीन एंड पर्पल। चलिए अब क्वेश्चन आगे स्टार्ट करते हैं अपन। अब हमारा काम था सबसे पहले अपर सम लिखना, अपर सम, सो UFP। आप सबको तो पता ही है कि बहुत सारे सब इंटरवल, पहले इंटरवल की लेंथ इनटू द सुप्रीमम प्लस दूसरे इंटरवल की लेंथ इनटू द सुप्रीमम, ऐसे करते करते kth इंटरवल की लेंथ इनटू द सुप्रीमम, ऐसे करते करते nth इंटरवल की लेंथ इनटू द सुप्रीमम। करेक्ट है बेटा? ओ इनटू आएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। समेशन की जगह मैंने खोल के लिख दिया इसको बेटा, समेशन नहीं लिखा, खोल के लिख दिया इसको। ये UFP है। नाउ आई एम गोइंग टू राइट
UFQ which has an extra term, del T1 M1 del T2 M2 plus dash dash plus, अब लेंथ ऑफ दिस इंटरवल गाइज, ये वाला ग्रीन वाला इंटरवल C माइनस टी के माइनस 1, यस ग्रीन इसकी बात कर रहा हूं मैं, इसमें जो लेंथ है C माइनस टी के माइनस 1, यस C माइनस टी के माइनस 1 इंटू द सुप्रीमम इन दिस इंटरवल, इस इंटरवल का सुप्रीमम है ग्रीन वाले का एम के डैश, सो आई एम गोइंग टू राइट एम के डैश देयर with the same color, so there should not be any confusion, plus then again length, then guys again length of the purple interval, that C tk, इसकी लेंथ है tk minus c, tk minus c, I am writing here tk minus, I am going to write the green color C here again, and इस इंटरवल का सुप्रीमम, इस इंटरवल का सुप्रीमम पर्पल से देखिए यहां आएगा ना, दैट इज एम के डबल डैश, दैट इज एम के डबल डैश, बाकी सारी कहानी वैसे की वैसी ही है, प्लस डैश डैश प्लस डेल टी एन एम एन. आई होप दिस चेंज यू कैन एक्सेप्ट. कुछ बच्चे ने लिखा है मुझे कुछ, इरफान अहमद, सर C माइनस टी के माइनस 1 टी के माइनस C, करेक्ट है बेटा, आपने बिल्कुल ठीक लिखा है. ओके, अब आपको प्रूव क्या करना था इरफान, आपको प्रूव करना था ये चीज कि UFQ लेस देन इक्वल टू UFP है, तो मतलब ऐसा करने से बात बनेगी कि UFP माइनस UFQ को अगर मैं किससे बड़ा बराबर बता दूं, 0 से, तो क्या ये रिजल्ट प्रूव हो जाएगा? यस, अगर मैं UFP को बड़ा बराबर बता दूं UFQ से, तो ये रिजल्ट प्रूव हो जाएगा हमारा. तो UFP में से UFQ को माइनस करते हैं बेटा. सो लेट्स स्टार्ट. UFP minus UFQ, and now this will cancel with this, will cancel with this. What is left? अब मैं कलर वाला नहीं लिख रहा हूं यार, अब बहुत थक गया बस इसको कलर को करते करते. डेल टी के एम के माइनस C माइनस टी के माइनस 1 एम के डैश माइनस टी के माइनस C एम के डबल डैश, एंड रेस्ट इज द सेम. क्या ये बात सही है कि नहीं है भाई? अब यार ये ऑड मैन आउट लग रहा है, तो इसको भी उस जैसा बनाओ. क्यों इसको भीड़ में, क्या मैं इसको टी के माइनस 1 लिख सकता हूं बेटा? एम के माइनस सेम. अब इन जैसा बनाना तो ऐड सब्ट्रैक्ट C करना पड़ेगा भाई इसमें. सो टी के माइनस C प्लस C, देखो बात बनी क्या? माइनस दिस. So let us take out common. Let us take out something common. Tk minus C, Tk minus C. So I am taking Tk minus C out. Its coefficient is Mk minus Mk double dash. Correct? Now I am going to take out this and this common. So plus C minus Tk minus 1. What is left is Mk minus Mk dash. This is clear to everyone or not? This is clear to everyone, guys. और ये बात आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये लेंथ है, लेंथ तो 0 से बड़ी बराबर ही होगी. लेंथ तो 0 से बड़ी, अच्छा ये बराबर हो ही नहीं सकती. रीजन बीइंग, बराबर हटा रहा हूं. क्यों? क्योंकि जो पार्टीशन हम करते हैं
उसका ऑर्डर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। जो भी हम पार्टीशन करते हैं, सर क्या आप डीयू के लिए पढ़ाते हैं? हाँ बेटा, डीयू के लिए तो पढ़ाते हैं। अच्छा, क्रिकेट एक्सपर्ट प्रेडिक्शन नहीं नहीं बेटा, मैं डीयू का प्रोफेसर नहीं हूं, मैं अल्फा प्लस का प्रोफेसर हूं, अल्फा प्लस इंस्टीट्यूट का बेटा, विच इज अ रिनॉन नेम इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स इन दिल्ली एंड एक्चुअल साइंस एज वेल। चलिए जी, ये तो समझ में आई यहां तक की बात सबको। अब मैंने एक रिश्ता दिखाया था सुप्रीमम्स के बीच में आपको, तो आओ उसी रिश्ते पे चले। ये देखो, ये रिश्ते देखो भाई, देखो देखो। तो एम के डैश सबसे छोटा, उससे बड़ा बराबर एम के डबल डैश, और उससे बड़ा बराबर एम के। ये रिलेशन उतार लेते हैं वहां पर। सो एम के डैश, एम के डबल डैश और एम के, ये रिलेशन मैं बता चुका आपको। अब एम के में से एम के माइनस डबल डैश करोगे तो 0 से बड़ा बराबर, ये भी 0 से बड़ा बराबर। तो क्या ये पूरा एक्सप्रेशन 0 से बड़ा बराबर है इरफान? तो यू एफ पी माइनस यू एफ क्यू क्या मेरे बेटा 0 से बड़ा बराबर आ गया? सो दिस विल गिव दैट यू एफ पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट? यू एफ क्यू। ये लोगो लगाने को किसने बोला आपको अल्फा वाला? अच्छा, तो ये ब्राइट बनना। तो हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया। तो हमने जैसा कहा था वो बात हमारी मानी गई कि अगर पार्टीशन P कंटेन करेगा Q में, तो अपर सम यू एफ क्यू हमेशा छोटा बराबर होगा किससे? यू एफ पी से। ओके, नाउ वी कैन कनेक्ट थिंग्स। अब हम चीजों को कनेक्ट कर सकते हैं बहुत आसानी से। और मैंने ये भी बताया कि लोअर सम एल एफ पी छोटा बराबर होगा एल एफ क्यू से। सो लेट अस कनेक्ट थिंग्स। कर देते हैं। देखो बेटा ध्यान से, आई एम गोइंग टू कनेक्टिंग थिंग्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बेटा, लोअर सम जो होता है वो सुप्रीमम होता है, और लोअर इंटीग्रल, सॉरी, लोअर इंटीग्रल इज द सुप्रीमम, सॉरी। पहले इसमें निकालते हैं, एल एफ पी में, सॉरी, एल एफ पी छोटा बराबर एल एफ क्यू, और एल एफ क्यू छोटा बराबर यू एफ क्यू, और यू एफ क्यू छोटा बराबर यू एफ पी। अगर कब 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 है ये बात? व्हेन दिस विल हैपन। ये रिलेशन समझ में आया कि नहीं आया पहले बताओ? कब? इफ P इज कंटेन्ड इन Q। ये तो ऑब्वियस है, लोअर सम हमेशा सेम पार्टीशन का लोअर सम छोटा बराबर होगा अपर सम से, ये बात तो सच है। और अगर P Q में कंटेन करता है तो लोअर सम ऑफ P लेस देन इक्वल टू लोअर सम ऑफ Q, और अपर सम ऑफ P इज ग्रेटर देन इक्वल टू अपर सम ऑफ Q। क्या ये रिलेशन समझ में आ गया भाई? तो बहुत अच्छा लगा आपका ये काम। अब आपको घर पे ये वाला रिजल्ट खुद करना है। यू हैव टू डू दिस रिजल्ट अगेन, आपको खुद से करना है ये वाला रिजल्ट। सर मैं ड्रॉपर हूँ, एग्जाम 23 की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मेरा सिलेबस हो गया है, मॉक टेस्ट कब से देना चाहिए? अब ड्रॉपर हो और आपका सिलेबस हो गया है तो ड्रॉपर बैच के लिए देखो, सुनो मेरी बात बेटा, आप मैथमेटिक्स से करना चाहते हैं कि स्टैटिस्टिक्स से? मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स?
तो आप मैथमेटिक्स से करना चाहते हैं तो विवेकानंद सर हैं अल्फा प्लस में, जो बहुत फेमस नाम है पूरे इंडिया में। विवेकानंद सर जो कि बहुत बड़े धुरंधर हैं मैथमेटिक्स के, उनका ड्रॉपर बैच स्टार्ट होगा रिजल्ट के बाद, जब ये रिजल्ट आ जाएगा 2022 का। तो मैं आपको एक सलाह दूंगा बेटा, ड्रॉपर बैच की तैयारी तो तुम करो ही करो, साथ में आप और भी एंट्रेंस कवर कर सकते हो, जो कि जैसे एनबीएचएम सितंबर में आएगा आपका, टिफर आपका दिसंबर में आएगा। तो जब आपका कोर्स हो चुका है तो आप थोड़ा सा लेवल बढ़ाएं, अपना लेवल बढ़ाएं। जैम तो करना ही करना है आपको, नो डाउट करना है आपको, और उसका ड्रॉपर बैच भी स्टार्ट होगा, पर साथ में आपको एनबीएचएम और टिफर जैसे एग्जाम भी टारगेट कर सकते हैं आप। हाँ जी, अल्फा प्लस भी मात्र 10,000 रुपए की फीस में आपको डीयूएमएससी एंट्रेंस की तैयारी कराता है। लेकिन वो खैर वो तो डाउन, हाँ स्कीम बंद हो गई है, सॉरी, वो दोबारा आएगी तो बताएंगे आपको। और ड्रॉपर बैच भी हमारा स्टार्ट हो रहा है, वो भी स्टार्ट होगा आफ्टर द एग्जाम। आप उसको ज्वाइन कीजिएगा, विवेकानंद सर का, और बहुत फेमस है, आप फैन हो जाओगे। उन्होंने देखो कोई लेक्चर डाला होगा यूट्यूब चैनल पे अभी लेटेस्ट, आपका फंक्शंस पे डाला होगा, किसी भी डाला होगा, देखो एक बार लेक्चर को जरा, आपको मजा आ जाएगा, और फिर आप बात करिएगा हमसे। तो आई थिंक स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया सबको? तो ये कॉन्सेप्ट में मजा आया होगा आपको सबको, है ना? तो हर मतलब कोशिश करूंगा ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊं, आप थोड़ा थोड़ा करके ही करें अभी, क्योंकि अभी सारे बच्चे आ नहीं रहे हैं इस पे, और रीमान इंटीग्रल की बहुत ज़रूरत है आप लोगों को। आज है ट्यूसडे, से मंडे मेरा डे होता है, मंडे एंड थर्सडे होता है मेरा दिन। तो कल थर्सडे है, तो कल फिर लेक्चर होगा आपका रीमान का, सेम लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। कल 2 इंपॉर्टेंट थ्योरम्स करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। आप आइएगा ज़रूर, आपको मज़ा आएगा, आप आइएगा ज़रूर। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स होंगी रीमान इंटीग्रल की। और कोई भी फ्रेंड आपका आईटी, जैम, सीएसआर, नेट, एमएससी एंट्रेंस या गेट कुछ भी तैयारी करना चाहता है, वो अल्फा प्लस के चैनल को सब्सक्राइब करे, और आगने वाले टाइम में उसके पास बहुत सारे वीडियोस आते रहेंगे। और भाई जो भी फ्रेंड्स आपके अनअकैडमी पे हैं उनको बता दीजिएगा कि अनअकैडमी हमने छोड़ दिया है, वी आर नॉट कंटिन्यूइंग विद दिस। थैंक यू इरफान अहमद, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। कल और मजा आएगा, बड़े बड़े प्रूफ करेंगे थोड़े से, जो एग्जाम में आते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर, ठीक है ना भाई।